زبان میں ویسے تو زمین کے بہت سارے لفظ ہیں، جس کا ایک نام ایسا ہے جس کی جھلک آپ کو تقریباً ہر زبان میں نظر آتی ہے، اور وہ ہے عربی لفظ ارد۔ اب اس کی الگ الگ ویریشن کو الگ الگ زبانوں میں دیکھیں۔ اب چاہے وہ انگلش میں ارد کہلائے یا پھر جرمن میں ایردے کہلائے، ڈچ میں اردہ کہلائے، نارویجین میں جارڈ کہلائے، ڈینش میں یوردن کہلائے، ایڈش میں ارد کہلائے۔ اب ان ساتوں پرانی زبانوں میں ارد کا مطلب بھی ملتا جلتا ہے، اور ان کی تعریف بھی ایک جیسی ہی ہے، یعنی ڈیفینیشن بھی ایک جیسی ہی ہے کہ چلنے کے قابل ہر وہ حصہ جو ہوا اور پانی سے الگ ہو وہ ارد ہے، یعنی زمین ہے۔ لیکن ایک اور اہم سوال یہ بھی ہے کہ یہ ارد کہاں تک پھیلی ہوئی ہے؟ انڈیا، پاکستان، امریکہ، سعودی عربیہ، انگلینڈ، روس، کینیڈا، کیا بس یہی ارد ہے؟ جب اللہ رب العزت سورہ شمس میں قسم اٹھا رہا ہے کہ قسم ہے ارد اور اس کے پھیلا دیے جانے کی، تو کیا اللہ تعالیٰ ان چھوٹے موٹے آڑے ٹیڑے 195 ممالک کی قسم اٹھا رہا ہے جس ارد پر اس وقت آپ اور میں رہ رہے ہیں؟ اس کی 90% یعنی 90% چٹانیں بیسالٹ سے بنی ہوئی ہیں۔ بیسالٹ دراصل ایک پتھریلا سا ایلیمنٹ ہے، جس طرح سے گرینائٹ ہے، سنگ مرمر ہوتا ہے۔ اب اگر اس ارد کی 90% چٹانیں بیسالٹ سے بنی ہوئی ہیں تو چلے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ ارد بیسالٹ کا ہی دوسرا نام ہے۔ مجھے یقین ہے آپ سب لوگوں نے 14ویں کا چاند تو دیکھا ہی ہوگا، لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس پر نظر آنے والے کالے رنگ کے دھبے کیا ہیں؟ چاند کے ان کالے دھبوں کو لونر ماریا کہتے ہیں، اور یہ دھبے دراصل اسی بیسالٹ کے وسیع اور عریض رقبے پر پھیلے ہوئے میدان ہیں۔ وہی بیسالٹ جو ہماری ارد میں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ٹیکنیکلی چاند بھی زمین ہی کی طرح ارد ہے۔ چلیں چاند کے علاوہ میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں فجر اور مغرب کے وقت ایک ستارہ نظر آتا ہے۔ دراصل وہ ستارہ نہیں، وہ ایک سیارہ یعنی پلینٹ ہے، جس کو ہم لوگ وینس کہتے ہیں۔ اس پر میری ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، جس کا دل کرے وہ وہاں جا کر دیکھ سکتا ہے، آپ کو کافی ڈیٹیل مل جائے گی۔ 70s اور 80s میں روس نے اس پلینٹ پر یعنی وینس پر 5 وینرا مشن بھیجے تھے، اور پتہ یہ چلا کہ اس پلینٹ پر درجنوں کلومیٹر بادلوں کی ایک موٹی تہ ہے، جس کے نیچے 80% یعنی 80% وینس اسی بیسالٹ کا بنا ہوا ہے، جس بیسالٹ کی ہماری اپنی زمین ہے۔ تو ٹیکنیکلی وینس بھی ارد کا ہی حصہ ہے، بادلوں سے ڈھکی ہوئی ایک ارد۔ مریخ یعنی مارس، جس پر فی الحال تقریباً 50 مشن جا چکے ہیں، وہ بھی ارد کی تاریخ پر پورا اترتا ہے۔ بلکہ ہماری اور مارس کی ارد کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے اندر فرق صرف پانی اور آرگینک میٹر کا ہے۔ ہماری ارد پر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، جبکہ مارس پر یہ چیزیں موجود نہیں۔ آپ جوپیٹر کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے، یہ ہمارے سورج کے سسٹم کا یعنی سولر سسٹم کا ایک بہت بڑا اور خوبصورت پلینٹ ہے، جس پر ہر وقت طوفان چلتے رہتے ہیں۔ رات کے وقت ہمارے آسمان پر صرف ایک ہی چاند نکلتا ہے، جبکہ جوپیٹر کے آسمان پر 79 چاند یعنی 79 نکلتے ہیں، اور وہ سب کے سب ارد کی تاریخ پر پورے اترتے ہیں۔ چلیں میں آپ کو اس سولر سسٹم سے بھی باہر لے چلتا ہوں، اور آج تک 4984 ایسے سسٹم اور ایسی زمینیں مل چکی ہیں جو ارد کی بنی ہوئی ہیں، جن کو نام بھی دیے جا چکے ہیں، اور ابھی 6590 اور ایسے حصے نظر آ رہے ہیں جو اسی ارد کے بنے ہوئے ہیں، لیکن ابھی انہیں نام دینا باقی ہے۔ ارد کے ان حصوں میں کوئی حصہ ہم سے بہت چھوٹا ہے تو کوئی حصہ ہم سے ملتا جلتا ہے۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا 2014 میں کیپلر 186F کے نام سے ایک ارد ملی تھی، جو بالکل ہماری دنیا جیسی ہے، ہماری اپنی ارد جیسی، لیکن ارد کا کوئی حصہ ہولناک حد تک ہم سے بہت بڑا ہے۔ مثلا HD 100546 یہ ارد کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، جو تقریباً ہمارے سورج جتنا بڑا ہے۔ ارد کے دوسرے حصوں کے بارے میں پہلی بار 1990 یعنی 1990 میں پتہ چلا تھا، لیکن تب سے لے کر آج تک ہر 27 مہینے کے بعد یہ تعداد دگنی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ ارد اس کائنات میں کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اب آپ کو احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی قسم ہے ارد اور اس کے پھیلا دیے جانے کی۔
जब जब अर्थ से निकलने, अर्थ में जाने और अर्थ से रिलेटेड जो भी बात होगी वो अर्थ इस पूरी कायनात में कहीं भी और किसी भी कोने में मौजूद हो सकती है। यही वो अर्थ थी जिसको सूरह अंबिया के मुताबिक आसमानों से अलग किया गया था। सूरह बकरा के मुताबिक आसमानों से पहले शक्ल में आई थी। सूरह बकरा के ही मुताबिक इसकी तख्लीक आसमानों से पहले हुई थी, जिसको हाम मीम सजदा के मुताबिक 2 दिन में तख्लीक किया गया था और फिर जिसको वन्नाजियात के मुताबिक चारों तरफ फैला दिया गया था। और फिर हाम मीम सजदा के मुताबिक पहाड़ों को रखा गया था, वो पहाड़ जो हर अर्थ में मौजूद हैं, अर्थ के हर हिस्से में मौजूद हैं। इनफैक्ट मार्स की अर्थ पर भी हमारी अर्थ से कई गुना बड़े पहाड़ मौजूद हैं। मसलन मार्स का माउंट ओलंपियस जो हमारी अर्थ के सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा है। हाम मीम सजदा के मुताबिक अर्थ में रहने वालों के लिए इनकी अर्थ में बरकतें भी रखती गई हैं जो हमारी अर्थ में हमारे लिए मौजूद हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि इस कायनात में जहां जहां भी अर्थ फैली हुई है वहां वहां उस अर्थ में रहने वालों के लिए उनकी जरूरत के मुताबिक बरकतें भी मौजूद होंगी। मसलन हमारी अर्थ में हमारे लिए रखी हुई बरकतों में से एक बरकत वो है जिससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और कारोबार चल रहा है। 130,000 मिलियन टन नेचुरल गैस और 16 ट्रिलियन बैरल पेट्रोल जो इस वक्त भी हमारी अर्थ में मौजूद है। सैटर्न के चांद टाइटस की अर्थ में तो इन चीजों के पूरे पूरे समुद्र रखे हुए हैं। हमारी अर्थ में छुपे 142 मिलियन कैरेट हीरे, जिसके लिए आज भी कॉन्गो में यानी सेंट्रल अफ्रीका में लड़ाई चल रही है। कैंसरी E50 नामी अर्थ में तो इस कदर कार्बन है कि इसकी पूरी की पूरी एक सतह ही हीरो की एक परत से ढकी हुई है। और इस अर्थ के कुछ हिस्से तो ऐसे भी हैं जिन पर पाई जाने वाली चीजें इनफैक्ट इतनी अजीबोगरीब हैं कि उनके लिए साइंस को नए नाम रखना पड़े थे। अब इससे एक बात तो बड़ी ही वजाहत के सामने आ गई कि कम से कम हमारी ये छोटी सी जमीन ही अर्थ नहीं है, बल्कि जमीन तो पूरी कायनात में फैली हुई अर्थ का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। और हाम मीम सजदा के मुताबिक अर्थ की तख्लीक और इसके फैला दिए जाने का अमल पूरे 4 दिन में हुआ था। अब ये 4 दिन किस तरह के थे? क्या ये हमारे 24 घंटे वाले दिन की तरह थे? हम इन्हें कैसे समझ सकते हैं? वक्त की इस अजीबो गरीब हकीकत के मुताबिक मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन इस अर्थ का फैलाव हमारी जमीन से लेकर कायनात के उन गुमनाम कोनों तक है जिनके बारे में आज तक कोई जान ही नहीं पाया। लेकिन सच कहूं तो अब समझ आ रहा है कि जितनी ताकतवर तख्लीक आसमान की थी उतनी ही अजीम और शान तख्लीक अर्थ की भी है। अर्थ इस दुनिया या इस जमीन की बात नहीं, बल्कि अर्थ का फैलाव तो इस कायनात में हर तरफ है। लेकिन क्यों? असल सवाल तो यही है कि आखिर अर्थ को इतने बड़े दर्जे पर क्यों फैलाया गया। इस सवाल के जवाब में मैं आपके सामने कुरान पाक में से इस अर्थ और जहां जहां ये फैली हुई है और इसमें रहने वालों के मुतालिक 8 आयात रख रहा हूं। आप जरा गौर से सुनिए। सूरह रहमान, इस अर्थ को तमाम जानदारों के रहने के लिए फैला दिया गया है। लेकिन कौन से जानदार? सूरह लुकमान, अर्थ में तरह तरह के जानदार रह रहे हैं। सूरह अनाम, अर्थ के इन जानदारों में बिल्कुल हमारी ही तरह के गिरोह भी हैं, यानी कि मुख्तलिफ कैटेगरीज। सूरह यासीन, हमारी तरह अर्थ में जहां जहां जानदार मौजूद हैं वो भी हमारी ही तरह जोड़ों में तख्लीक हुए हैं। बल्कि सूरह यासीन के ही मुताबिक अर्थ में जानदारों के अलावा उन चीजों के भी जोड़े हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं। सूरह नहल, इन जानदारों के मुख्तलिफ रंग और मुख्तलिफ शक्लें हैं। हाम मीम सजदा, इन मुख्तलिफ रंगों और शक्लों के जानदारों की खुराक भी उन्हीं की अर्थ में है जहां वो रहते हैं। सूरह यासीन, इस खुराक में भी हर चीज के जोड़े हैं, चाहे वो इस अर्थ से ही क्यों ना उगी हों। और सूरह हूद के मुताबिक वो खुराकें कहाँ हैं, वो इन जानदारों तक किस तरह पहुंचती हैं और वो किस मुकाम पर रखी हुई हैं, ये सब देखना उसी के जिम्मे है जिसने इस अर्थ को और इसमें रहने वालों को बनाया है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत। सूरह शोरा के मुताबिक जानदारों का पूरी कायनात में फैली इतनी बड़ी अर्थ में इस तरह फैला दिया जाना
रब ताला की निशानियों में से एक है। सूरह आले इमरान, अर्द के रहने वाले तमाम जानदार चाहें या ना चाहें अल्लाह ही के जेर हुक्म हैं। सूरह फतह में तो 2 मरतबा फरमाया है कि हम और अर्द में रहने वाले तमाम जानदार, चाहे वो हमारी अर्द में हों या फिर अर्द के किसी दूर दराज के हिस्से में, वो अल्लाह ही के लिए हैं। सूरह हश्र और सूरह हदीद, अर्द में रहने वाले सभी अल्लाह की तस्बीह और पाकी बयान कर रहे हैं। और सूरह इसरा के मुताबिक इन जानदारों की तस्बीहात हम समझ ही नहीं सकेंगे। शायद अब आप लोग एहसास कर पाएं कि अर्द का कॉन्सेप्ट किस कदर अजीम है। ये सिर्फ हमारी दुनिया की बात नहीं, बल्कि अल्लाह ही जानता है ये अर्द कहां कहां तक फैली हुई है और इसमें यानी अर्द में रहने वाले जानदार कायनात के किस किस कोने में मौजूद हैं और वो किस किस तादाद में हैं। क्योंकि सूरह मुदस्सिर के मुताबिक अल्लाह के लश्करों को सिवाय अल्लाह के कोई और नहीं जानता। और सूरह नहल के मुताबिक वो बहुत सी ऐसी चीजें भी पैदा करता है जिसका हमें कुछ पता नहीं, लेकिन सूरह शोरा के मुताबिक अल्लाह जब चाहे उन्हें जमा भी कर सकता है। अगर आपने अब तक इस वीडियो को गौर से देखा और लफ्जों को गौर से सुना है, तो अब इससे ज्यादा वाज़ेह और क्या सबूत होगा कि इंसान के अलावा भी कई तरह की मखलूकात भी इस अर्द में मौजूद हैं। फर्क सिर्फ अर्द के लफ्ज को समझने का है। जो कुछ भी मैंने अभी तक आपको बताया वो सब कुरान की आयात हैं। अर्द के हर हिस्से में रहने वाली अल्लाह ही की मखलूक हैं। चाहे कायनात के किसी दूर दराज गुमनाम हिस्से में मौजूद अर्द पर रहने वाली कोई मखलूक हो जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, वो भी हमारी ही तरह खुशी ना खुशी, चाहकर या ना चाहकर अल्लाह ही के जेर हुक्म हैं। वो तस्बीह भी करते हैं, लेकिन हम उनकी तस्बीहात को समझ नहीं सकते। और हम समझ भी कैसे सकते हैं? खुदा जाने उस अर्द में रहने वाले जानदार किस किस्म की बोलियां बोलते हैं और अल्लाह चाहे तो इन मखलूकात को जब चाहे जमा कर दे। और यकीन माने, मेरी रिसर्च मुझे ये बताती है कि ऐसा एक दिन होना जरूर है कि अर्द की एक ऐसी मखलूक ने एक दिन हमारे साथ मिलना है जिसे अभी तक हमने देखा भी नहीं है।